करते हैं. A very warm welcome to everybody who is present here, especially to our distinguished speaker, Mr. Shahbaz Zaidi, on this session on adopting digital economy and cryptocurrency in Pakistan, possibilities and concerns. This is a fascinating subject, something emerging and something totally new for somebody as old as I am. But the younger people, and especially our young researchers, are, I think, more in sync with the nature of this subject. It is my great pleasure to introduce Mr. Shahbaz Zaidi. He has spoken here before, and it is an honor to have him grace our platform again. He was formerly chairman of the Federal Board of Revenue, but by training, he is a chartered accountant. He has been a senior partner in A.F. Ferguson and Company. He has served in many distinguished positions. He was caretaker provincial minister of Sindh in 2013. We know him very well for his great contribution, the contribution which he has made towards the development of taxation and of the development of the fiscal laws of the country. He is a trustee of the Sindh Institute of Urology and Transplantation, popularly known as SIUT, and a member Board of Governors of Liaquat National Hospital in Karachi, which is one of Karachi's leading healthcare centers. In the past, he has been president of the Institute of Chartered Accountants and chairman of the South Asia Federation of Accountants. He is a prolific writer, and he has written a number of books, among them including Panama Leaks, A Blessing in Disguise, Offshore Assets of Pakistani Citizens, A Journey for Clarity and Pakistan, Not a Failed State. Today he has informed me that he has also written his biography, extending over the length of 650 pages. So all of you, or those of you who have the patience to read them, to read what he has written, we look forward to his biography. So it is my pleasure to give him the floor. Bismillahirrahmanirrahim. My very honorable Dr. Masuba Hassan, the members of the faculty of PIIA, it's an honor for me to speak at this forum. Today we are discussing a very technical and a very relevant subject, which is adopting digital economy and cryptocurrency in Pakistan, possibilities and concern. It is better for us to first understand that what do we mean by digital economy, because it is being generally, the term is not properly understood by the people. The digital economy encompasses economic activities transformed and driven by digital technologies connecting individuals, businesses, devices, and data through the internet and mobile technologies. It includes online transaction and impact of innovation like artificial intelligence. A thriving digital economy requires reliable connectivity, digital literacy, and robust IT infrastructure to achieve its full-fledged potential. So firstly, we have to understand that economy
the digital is only a mode of economy. It's not itself an economy. It's a mode of doing transaction. Economy itself works on a whatever the basis it does, but digital is only the mode of doing the business. It operates through the digital mode, which is mobile, internet, and things like that. I think most of you must know, at least must be knowing it, that internet is not a invention by any scientist or the commercial activity. It is an invention by the NASA for military purposes. Originally, it was actually the invention for the NASA for the military purposes. Then it went into public. That is right. Pakistan has got an economy of something like $400 billion. This is the documented Pakistan economy, something like $373 billion economy. The undocumented economy is right 40% of the size of the Pakistan economy. So our size of the economy is something like $550 million. This is the size of the economy of Pakistan. But it's very strange. It's very strange that the recent report of the Auditor General of Pakistan has said that he has located the mistakes of around 1.25 trillion in the accounts of Pakistan. And we have been asking him repeatedly, please sir, correct it. It cannot be for 1.2 trillion error because the size is 400. Doesn't matter. So the size of the digital economy in Pakistan, as far as the Pakistan size of digital economy is concerned, in my personal view, it is not more than 5% of the total economy size. आज हमारी जो डिजिटल इकोनॉमी है वो 5 से 7-8% से ज़्यादा नहीं है और out of the first step, our first step in Pakistan is to document and to digitize. But we can also do direct digitization where the documentation is actually there. So it can be both of things. We are at the moment are trying to document the economy, and at the same time, the next step is to digitize the economy, and that is that is to be done. Digitization in Pakistan has been quite unlike the perception of the society. Digitization has been reasonably well done in Pakistan and in some cases. For example, in Pakistan, all the passports are machine readable. This is digitization. Pakistan identity card is machine readable. So Pakistan is not that bad in digitization of the processes. But ये बदकिस्मती कह लें या खुशकिस्मती कह लें, ये दोनों काम मिलिट्री के रिजीम में हुए और अमेरिका के कहने पे हुए. हमने खुद नहीं किए. डिजिटाइजेशन ऑफ पासपोर्ट भी उन्होंने कहा और आइडेंटिटी कार्ड बनाने की भी उन्होंने कहा कि आइडेंटिटी कार्ड. सो व्हाट आई एम सेइंग, इंडिया का जो आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड, वो हमारे बाद आया है. इंडिया में आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, वो हमारे बाद आया है. अमेरिका में आज भी प्रॉपर्ली आइडेंटिटी कार्ड उस शक्ल का नहीं है जिस शक्ल का आइडेंटिटी कार्ड हमारे मुल्क में है. तो हम वी आर नॉट दैट बैड इन डिजिटाइजेशन, बट वी डू समबडी आस्क अस टू डू इन दैट सेंस. So this is the digital economy. Now the second thing is, what is cryptocurrency? What is cryptocurrency? A cryptocurrency is a digital currency. Digital currency means that the cryptocurrency does not exist in the form of any physical thing. It is not in the form of any physical thing, which is an alternate form of payment created using encryption algorithms. So it is something in the encryption positions, not in the form of something tangible. The use of encryption technologies means that the cryptocurrencies function both as currency and as virtual accounting systems. So it's actually cryptocurrency
is an encrypted currency, something which is considered to be a currency, but it is not in the form of any physical and tangible thing. This is cryptocurrency. Okay? And we at times confuse by the products which are cryptocurrency by using the word cryptocurrency. For example, Bitcoin is a kind of cryptocurrency, but cryptocurrency is a much wider term. In order to understand what is cryptocurrency, it is better to understand what is a currency. Currency क्या चीज है? A currency is a system of money including coins and banknotes used in a particular country or economic area serving as the medium of exchange for goods and services. करेंसी क्या चीज है? करेंसी ये है कि आपने एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाया हुआ है कि आप बार्टर नहीं करते, आप अपनी चीज करेंसी में बेचते हैं, वो करेंसी से अगली चीज ले लेते हैं. करेंसी सिर्फ एक मीडियम है. करेंसी इज ओनली अ मीडियम. So in order to understand the cryptocurrency, you have to first understand what is the currency itself. Currency is a medium of exchange. मैं यहाँ आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्लैरिफाई कर देता हूँ, शायद आपको पता नहीं हो. आप में से कितने लोग जानते हैं, आप सारे मुझे कुछ लोग हजरात तो बड़े नजर आते, आपके ख्याल में जब हमारे आकाए नामदार जिंदा थे, हयात थे, दुनिया में थे, उस वक्त करेंसी कौन सी थी? कभी आपने सोचा? दिरहम था और दीनार था. वो किसने इशू किया था? हाँ? किसने? यस, दो करेंसीज थी. एक दिरहम था जो कि ससानी जो चांदी का था, दैट वाज इशूड बाय द पर्शियन एम्पायर, एंड द अदर वाज दीनार व्हिच वाज इशूड बाय द रोमन एम्पायर, बाइजेंटाइन एम्पायर. And Prophet never changed that currency. So Prophet was saying that if the currency is working, why should I change it? So there is no concept of Islamic currency. He continued with the dirham and dinar, which was Byzantine and the Sassanites. चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा. अब्दुल मलिक बिन मरवान के जमाने में उन्होंने दीनार के ऊपर कुछ ऐसे अल्फाज लिखे जो तौहीन रिसालत थे. तो मुसलमानों ने कहा कि अब क्या करना चाहिए. तो उस वक्त हमारे जो अहले तशी के इमाम थे, मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, उनके पास वो आए तो उन्होंने कहा कि आप अपनी करेंसी इशू करें. ये कोई 150 हिजरी का वाकया है. तो उस वक्त पहली मुस्लिम करेंसी इशू हुई थी. तो करेंसी जो है, करेंसी जो होती है उसका कोई मजहब, कोई दीन नहीं होता, कभी उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता. तो आज जो मैंने, आप लोगों ने मेरा पॉडकास्ट पढ़ा हो, सबसे मुतबर्रिक, सबसे पाक करेंसी वो डॉलर है. उसकी वजह यह है कि उसमें एक इंतहाई पाक और शाइस्ता और अच्छा जुमला लिखा हुआ है जो हर एक को लिखना चाहिए, मौलवियों को लिखना चाहिए. उस पर लिखा है इन गॉड वी ट्रस्ट. ठीक है, अगर मैं उसको अरबी में पकड़ दूं तवक्कल अलल्लाह, तो आप सारे उसको चूमने लगेंगे. अगर मैं इसके अंदर लिख दूं ना तवक्कल अलल्लाह, जो उसने लिखा हुआ है इंग्लिश में इन गॉड वी ट्रस्ट लिखा हुआ है डॉलर के ऊपर, तो वो बिल्कुल मजहबी तकी उस्मानी साहब की एक्सेप्टेड करेंसी हो जाएगी. डॉलर जो है ना वो बड़ा अच्छा, मैं तो उसको बड़ा मुतबर्रिक करेंसी समझता हूं, क्योंकि वो तवक्कल अलल्लाह पे इशू हुई है. ठीक है ना, उसमें लिखा हुआ है इन गॉड वी ट्रस्ट. इससे ज्यादा क्या लिखे बेचारे, उससे तो क्या लिखे वो बताए ना, वो क्या लिखे, वो कैसे साबित करें कि वो मुसलमान है. तो ठीक है, आगे चले. अच्छा, तो सवाल ये, इट इज टिपिकली इशूड बाय द गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक. देखिए, इशू ये है कि जब तक आप क्रिप्टो करेंसी को समझेंगे, जब तक आप करेंसी को नहीं समझते. करेंसी वो होती है जो सेंट्रल बैंक और फेस वैल्यू होती है एंड स्टोर ऑफ द वैल्यू. फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर, यूरो एंड द पाकिस्तानी रुपी आर डिफरेंट करेंसीज. ये करेंसीज है. ठीक है. अच्छा, अब आके डिफरेंशिएट करते, अगले में चलो, अगला चले. करेंसी, क्रिप्टो करेंसी है द नेशन स्टेट.
A currency is a medium of exchange issued by the government of a nation state. In simple terms, a cryptocurrency is a currency issued by, not issued by an institution of nation state. क्रिप्टोकरेंसी क्या चीज है? क्रिप्टोकरेंसी वो है जो एक आदमी ने मार्केट में फ्लोट कर दी है, जिसके पीछे नेशन स्टेट नहीं है। इसके पीछे कोई नेशन स्टेट नहीं है। करेंसी के पीछे हमेशा नेशन स्टेट होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंग्लैंड है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। करेंसी का ताल्लुक हमेशा नेशन स्टेट के साथ है। कोई स्टेट होगी तो वो करेंसी इशू करेगी। क्रिप्टो करेंसी जो मैकेनिज्म है वो कभी भी किसी नेशन स्टेट से रिलेट नहीं करता। क्या बंद हो गया? क्या हुआ? अच्छा, द नेशन स्टेट्स आर इफेक्टिवली बैरियर इन द एक्सचेंज मैकेनिज्म। ये जो आपने नेशन स्टेट बना रखी हैं, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, ये सब जो हैं ये एक्चुअली बैरियर्स हैं एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट के अंदर। कि पहले हम एलसी खोलें, फिर पैसे लेके जाएं, फिर वहां से दें, फिर वहां से आए, फिर हम करेंसी को कन्वर्ट करें, युआन को रुपी करें, रुपी को युआन करें। सीधे अगर नेशन स्टेट नहीं हो तो ये बैरियर्स नहीं होंगे दुनिया में। तो व्हेन फॉर वॉट एवर रीजन देयर आर दीज बैरियर्स आर विल वैनिश, वन करेंसी विल एमर्ज। जब ये सपोज करें ये बैरियर खत्म हो जाए तो एक करेंसी एमर्ज हो जाएगी दुनिया में, जो कि आज इफेक्टिवली डॉलर है। आप दुनिया में कहीं जाए वो पूछते हैं डॉलर से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये नेशन स्टेट जो है दुनिया में, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, ये सारी नेशन स्टेट टेक्निकली रेलेवेंट है क्योंकि इफेक्टिवली करेंसी दुनिया में आज डॉलर है। आप हर चीज को डॉलर टर्म में लेते हैं, एलसी आपकी डॉलर में खुलती है, आपकी हर चीज डॉलर में होती है, आपका बेसिकली डॉलर है। तो आपकी करेंसी एक सब्सिडियरी करेंसी है। इन फ्यूचर इट विल बी सम क्रिप्टो करेंसीज। मैं आज 2025 में यहां खड़ा हूं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 2050 तक डॉलर खत्म हो जाएगा और कोई क्रिप्टो करेंसी की शक्ल में कोई चीज आएगी जो कि किसी की रेगुलेशन नहीं होगी। अगर आप इस वक्त आप गौर कर रहे होंगे तो एक बड़ी सख्त टेंशन चल रही है इस वक्त बिटवीन ट्रंप एंड द फेडरल रिजर्व ऑफ ट्रंप। अगर आप गौर कर रहे हो तो इस वक्त एक बड़ी सख्त जंग चल रही है फेडरल रिजर्व और ट्रंप के दरमियान में, क्योंकि ये फेडरल रिजर्व्स जो है, सेंट्रल बैंक्स जो है, ये इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर इंटरफेयर करके चीजों को चेंज करके पॉलिटिशियंस को ऑपरेट नहीं करने दे रहे, तो चीजों में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये टेम्परेरी हैं और एक टाइम में भी 10, 15, 25 साल बाद ये सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे और आप इफेक्टिवली चले जाएंगे एक मीडियम एक्सचेंज पर, जो कि आपके पास शायद ऐसा हो जो किसी कंट्री की रिजर्व बैंक ने इशू नहीं किया हो, या ऐसा हो जो सब एक्सेप्ट करें और सब डिजिटल हो। आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे, उसको आप रोक नहीं सकते। There the value of the currency would depend upon the trust reposed by the world at large on those issuers। अब बिटकॉइन कितने का है, क्या है, कितने का होगा, कितने की वो करेंसी होगी, ये करेंसी डिपेंड करेगी कि उस इंस्टीट्यूशन पे जिसने इशू किया हुआ है उसके ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है लोगों का, उसका ट्रस्ट कितना है, उसकी वैल्यू क्या है। आज जो आप बिटकॉइन देखते हैं ये किसने इशू किया है, इसका फाउंडर कौन है? इसका फाउंडर आइडेंटिफाइड नहीं है। अगर आप इसकी किताबें पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि एक जैपनीज था, अकॉर्डिंग टू देम एक जैपनीज ने ये सिस्टम इशू किया था और वो चल रहा है, बिटकॉइन चल रहा है बस। अब आप बिटकॉइन के पीछे जाएंगे तो आपको कुछ अंदर से वो कुछ चीज नहीं है, कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, कोई उसकी कंपनी नहीं है, कोई उसकी अथॉरिटी नहीं है। अच्छा, अब आते हैं, ये सारी थ्योरी मैंने बताई। अब आते हैं दुनिया में दो तरह की इकोनॉमी होती हैं। एक इकोनॉमी होती है जहां पर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटेड होता है, मतलब ये कि आपको अगर डॉलर चाहिए तो आप ओपन मार्केट से डॉलर नहीं ले सकते। आपको डॉलर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मिलेगा, एक सर्टेन अमाउंट दे देते हैं आपको, मगर बड़े अमाउंट का डॉलर आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मिलेगा। एक इकोनॉमी ऐसी होती है जहां पर रेगुलेटेड नहीं होती,
दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमी जो हमारे से रेलिवेंट है वो रेगुलेटेड इकोनॉमी है, उनमें एक पाकिस्तान है और एक इंडिया है। ये रेगुलेटेड इकोनॉमी है, यहां पर आपको डॉलर नहीं मिलता। आप, मैं कहूं यार मेरे ये पकड़े मेरे से 2 बिलियन रुपीस और मुझे इतने 2 बिलियन के डॉलर दे दें, तो ये टेक्निकली आज अवेलेबल नहीं है, ये इलीगल है। ये काम मियां नवाज शरीफ ने प्रोडक्शन और रिफॉर्म एक्ट के तहत शुरू किया था, जिसने पाकिस्तान की तबाही फेर दी। आज उसके 18 में वो खत्म कर दिया, मगर आज पाकिस्तान रेगुलेटेड एक्सचेंज पे ऑपरेट करता है। आपको डॉलर, 1 बिलियन डॉलर, 10 बिलियन डॉलर, 20 बिलियन डॉलर बाजार में नहीं मिलेगा आपको। हम रेगुलेटेड एक्सचेंज में काम करते हैं, मतलब हमारे पास डॉलर के आने और जाने के लिए आजादी नहीं है, बैंक आजाद नहीं है। बैंकों के पास डॉलर आएगा या डॉलर जाएगा वो स्टेट बैंक के थ्रू आएगा। अगर डॉलर आएगा तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उस डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करके आपको देगा, डॉलर नहीं देगा आपको। अगर आपने डॉलर में कमाया तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको डॉलर की कमाई कन्वर्ट कर देगा, मगर देगा आपको रुपीस, डॉलर नहीं देगा। ये रेगुलेटेड और रेगुलेटेड इकोनॉमी का फर्क है। पाकिस्तान रेगुलेटेड इकोनॉमी है, इंडिया रेगुलेटेड इकोनॉमी है। यूएसए, यूके रेगुलेटेड इकोनॉमी नहीं है फॉरेन एक्सचेंज के लिए। वहां पर आप कन्वर्टिबिलिटी फ्री है। The concept of cryptocurrency can effectively operate in those economies where the foreign exchange is not regulated. जो क्रिप्टो करेंसी है वो सिर्फ वहां हो सकती है जहां पर मेरे पास कन्वर्टेबिलिटी हो। आज मैं क्रिप्टो करेंसी में ऑपरेट करना चाहता हूं, मैं कहां से लाऊंगा डॉलर? मैं डॉलर कहां से लाऊंगा? मेरे पास तो वो ले लेगा, मुझसे रुपये थोड़ी लेगा। जो मुझे क्रिप्टो करेंसी बेचेगा वो मुझसे रुपये तो नहीं लेगा, वो कहेगा भाई डॉलर में कन्वर्ट करा के लाओ, तो वो मैं कहां से लेकर आऊंगा? तो टेक्निकली स्पीकिंग जो कंट्रीज रेगुलेटेड फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेट करते हैं वहां क्रिप्टो करेंसी नहीं हो सकती। तो ये जो हमने क्रिप्टो करेंसी की कहानी डाली हुई है, ये टेक्निकली गलत है। एक्सचेंज, जहां पर एक्सचेंज रेगुलेटेड होता है वहां क्रिप्टो करेंसी हो नहीं सकती, आप ले नहीं सकते। कहां से लाएंगे डॉलर? कहां से लाएंगे? So in Pakistan the question of is premature. India has vehemently rejected the idea of any foreign exchange regulation on the matter. इंडिया ने इसको बिल्कुल टोटली रिजेक्ट कर दिया कि हम क्रिप्टो करेंसी में कोई लेजिस्लेशन करना नहीं चाहते। उन्होंने इनकम टैक्स पे जरूर कहा है कि अगर एसेट है तो आप क्लोज करेंगे। इंडिया ने कोई रेगुलेशन नहीं की है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। नेक्स्ट आगे चलें। ये अमेरिका, अच्छा अब प्रॉब्लम ये है कि हमें फॉलो करना होता है अमेरिका को। अमेरिका में एक लॉ आया जिसका नाम है जीनियस एक्ट। जीनियस एक्ट जो है इसका नाम है द गाइडिंग एंड एस्टेब्लिशिंग नेशनल इनोवेशन फॉर यूएस स्टेबल कॉइन एक्ट। इसको अगर आप शॉर्ट करें तो ये बनता है जीनियस एक्ट। इसमें फेडरल लॉ ने कहा है कि आप क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर सकते हैं। अमेरिका में वो रेगुलेट करने के लिए मैकेनिज्म ला रहे हैं। अमेरिकन्स ने एक लॉ बनाया है जिसका नाम है जीनियस एक्ट। जीनियस एक्ट के तहत वो क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की चीजें ला रहे हैं और उसके अंदर उन्होंने जीनियस एक्ट स्टेबल कॉइन बनाया है जो बिटकॉइन या स्टेबल कॉइन है, और उसको वो मुख्तलिफ शक्ल दे रहे हैं कि उससे ये मतलब वो ये है कि जब आप अमेरिकन रेगुलेटेड बिटकॉइन खरीदेंगे तो वो उसका मतलब ये है कि उसके पीछे अमेरिकन गवर्नमेंट का रेगुलेशन है, आप बिल्कुल जुआ नहीं खेल रहे। तो स्टेबल कॉइन जो अमेरिकन लेकर आ रहे हैं जिसका जीनियस एक्ट के तहत, वो रेगुलेटेड करेंसी है जो अमेरिकन लेकर आ रहे हैं और वो उन्होंने जीनियस एक्ट बनाया है। और ये ट्रम्प का इस पे बड़ा वो चाहता है कि ये इस पे आए और उनके यहाँ ये पॉसिबल है क्योंकि वो फेडरल रिजर्व के मैकेनिज्म से हटना चाहते हैं और वो ये समझते हैं कि फेडरल रिजर्व उनको वो स्पेस नहीं दे रहा है जो उनको स्पेस चाहिए अल्टीमेटली फॉर द एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो वो अमेरिकन, स्पेशली द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन द जीनियस एक्ट। अब हमारा प्रॉब्लम यह है कि जब अमेरिका ने जीनियस एक्ट पास कर दिया और हम
लंच पर कहकर आ गए थे कि हम भी फॉलो करेंगे, तो फिर हमने भी कर दिया। अब हमने जीनियस एक्ट पास कर दिया। हमारा जीनियस एक्ट नहीं है, थोड़ा मुख्तलिफ है। ये अच्छा किया कि उसमें हमने कहा पास करने के बाद यूं करके पास किया और फिर यूं करके उसको रोक लिया। मतलब हमने कहानी भी पूरी कर दी मगर किया भी नहीं। ये अच्छी बात है कि हमने पूरा पास भी कर दिया मगर हमने किया नहीं, कि हमने कोई चीज नहीं पास की इन दैट सेंस। तो जीनियस एक्ट जो है, अगर आप उसको जीनियस एक्ट को पढ़ेंगे तो जीनियस एक्ट और पाकिस्तान का वर्चुअल एसेट एक्ट, आगे पाकिस्तान का वर्चुअल एसेट एक्ट है, ऑर्डिनेंस है, जो 2025 में आया। मुझे समझ ये नहीं आया कि ऐसी कौन सा तूफान था कि आपको वर्चुअल एक्ट लाना पड़ा और एक दिन में लेकर आए। ये पाकिस्तान का वो एक्ट है, ऑर्डिनेंस है, जो असेंबली के होते हुए आया और आपने कहा इमीडिएट इन फोर्स। आजकल उससे बहस हो रही है। इस वक्त असेंबली में वर्चुअल एसेट पर बहस हो रही है, मगर लॉ ऑलरेडी ऑर्डिनेंस के तहत ऑलरेडी आ चुका है, लॉ एप्लीकेबल है। उसका नाम है वर्चुअल एसेट एक्ट 2025 और ये आया है 6 जुलाई 2025 को। उन्होंने इसको एनफोर्स कर दिया बाय ऑर्डिनेंस। वर्चुअल एसेट एक्ट पाकिस्तान में आ गया है। अब इस वक्त वर्चुअल एसेट पाकिस्तान एक्ट पाकिस्तान में है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो बड़ा इंपॉर्टेंट बाइट है कि क्या वर्चुअल एसेट एक्ट आज आया है। अब ये रेट्रोस्पेक्टिव भी नहीं है, प्रोस्पेक्टिव है टेक्निकली। तो जिन पाकिस्तानीज के पास आज बिटकॉइंस हैं वो क्या करेंगे, उसको डिस्क्लोज करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानीज के पास बिटकॉइंस हैं। और मैं अगली स्लाइड पे आपको दिखाऊंगा, अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं तो वो ये कहते हैं कि इस वक्त तकरीबन 90 लाख पाकिस्तानी हैं जो कि बिटकॉइन रखते हैं। सही, बच्चों का शौक है, हर बच्चे ने ये कहानी शुरू की हुई है। वो पता नहीं थोड़ा बहुत डॉलर लेके आगे पीछे करते रहते हैं, सारा दिन बैठ के वो बिटकॉइन से खेलते रहते हैं। तो ये इस वक्त जो रिपोर्ट, अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे और आप डालेंगे कि कितने पाकिस्तानी हैं जो बिटकॉइन में डील करते हैं, तो वो 90 बिलियन देते हैं। और उन्होंने आगे एक और चीज लिखी है, जो मेरे एक पार्टनर बैठे हैं यहाँ पर, वो डिसएग्री करते हैं। उन्होंने लिखा है कि अगले 3 साल में ये पाकिस्तानियों की तादाद 3 करोड़ हो जाएगी जो बिटकॉइन में डील करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 90 लाख वो कहते हैं आज है, और 3 करोड़ ये 2 साल में हो जाएंगे जो लोग बिटकॉइन में डील करते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमने वर्चुअल एसेट एक्ट बना दिया और अब हम एक रेगुलेशन लेकर आए हैं जिसमें हमने 2 काइंड के टोकन इशू किए हैं। एक एसिड रेफरेंस टोकन है और एक फ्लैट रेफरेंस टोकन है। मतलब ये दोनों आप समझे कि वो कंपनी आएगी, वो अपने एसेट रखेगी पाकिस्तान में, उस एसेट के डॉलर लेकर आएगी और उसके बेस पर वो टोकन इशू होगा और वो टोकन फिर आप ले सकते हैं। वो आप आसानी समझे कि मैं एक कंपनी बना के लाऊंगा, मैं एसेट रखूंगा पाकिस्तान में, उसको एक वर्चुअल एसेट अथॉरिटी उसको रेगुलेट करेगी, उस एसेट के बेस पर वो टोकन इशू करेगी और उस टोकन को आप खरीद बेच सकते हैं। दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज ट्राइंग टू डू। ये तकरीबन जीनियस एक्ट का ही कॉपी है, मगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसमें यह है, मैंने इस पर कमेंट भी लिखा था, अखबार में आर्टिकल भी लिखा था, कि हम सिर्फ वो बिटकॉइन इशू कर सकते हैं जिसका डॉलर वो पहले दफा पाकिस्तान में लेकर आया हो। आज मैं ये नहीं कर सकता कि मैं एक बिटकॉइन इशू कर दूं और पाकिस्तानियों को बोलूं कि आप इसको डॉलर में कर दें, इस तरह से डॉलर बाहर निकल जाएगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए जो बिटकॉइन है या जो ये क्रिप्टो करेंसी है, ये आगे चला क्रिप्टो करेंसी जो है ये बड़ा आसान, इससे हवाला बड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि आपने अगर किसी आदमी से कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है जो बाहर पैसे करने हैं, तो आप उसको क्रिप्टो करेंसी देते हैं, वो क्रिप्टो करेंसी एनकैश कर लेगा, आपका पैसा बाहर चला जाएगा। तो क्रिप्टो करेंसी का बड़ा रिलेशन हवाले के साथ है। अच्छा, इसमें यहां मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूं। हमारे मुल्क में हवाला जो है वो एक गाली है।
कहते हम कहते हैं कि बंदा हवाला कर रहा है तो हम समझते हैं कि कोई जुर्म कर रहा है। हाँ, हवाला पाकिस्तान में जुर्म है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन है। अदरवाइज हवाला इज जस्ट अ करेंसी ट्रांजैक्शन। पर हवाला कोई इन सब्सटेंस कोई इलीगल चीज नहीं है, मगर क्योंकि पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन है इसलिए हवाला जो है वो शायद वैलिड ट्रांजैक्शन नहीं बनती है। अदरवाइज हवाला जो है वो एक मनी का मोड ऑफ एक्सचेंज है। मैं आपको कह रहा हूं आप मुझसे यहाँ एसेट ले लें, मुझे डॉलर दे दें, वहां आप मुझे रुपये ले लें, यहां मुझे डॉलर दे दें, ये दिस इज कॉल्ड हवाला इज। तो हवाला कोई इतनी खतरनाक चीज नहीं है इन दैट सेंस, मगर हवाला जो है वो क्योंकि हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन है इसलिए हवाला पाकिस्तान में नहीं पाकिस्तान में वो इलीगल है, इलिजिमेट है, और हवाला करने वाला आप उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। मगर हवाला वो चीज है जिसका कभी ट्रेल नहीं हो सकता। हवाले का तो कॉन्सेप्ट ही ट्रांसफर होता है कि मैं यहां से आपको रुपये दे देता हूं, वहां डॉलर दे देता हूं, यहां आपको उसके बदले एसेट दे देता हूं, वहां आपको दूसरा एसेट दे देता हूं। हवाले का मतलब ये है। तो ये हवाला जो है ये कभी दुनिया में हवाला खत्म नहीं हो सकता। मतलब दुनिया में जब तक, मैं आपको आसान कर देता हूं, मिसाल कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में 30 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस आती है बाहर से, ठीक है। एक आदमी सऊदी वर्कर के पास जाता है, पाकिस्तानी वर्कर सऊदी अरेबिया में, कि भाई आप ये 5 बिलियन डॉलर मुझे दे दें और ये आपको अपनी अम्मा को भिजवाना है ना, और वो रुपये में भेजना है, वो मैं उनको अम्मा को दे दूंगा पाकिस्तान में। खत्म होगी बात, ये हवाला है। सिंपल एज दैट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो कहेगा यार आप ये 5 बिलियन डॉलर पाकिस्तान नहीं भेजे, मुझे दे दें और मैं आपको पाकिस्तान में जो मेरे पैसे हैं उनमें से आपकी वालिदा को 5 बिलियन रुपीज दे दूंगा। खत्म। ये दिस इज सिंपल हवाला। क्योंकि मेरी गर्दन बड़ी पतली है, मैं गरीब आदमी हूं और मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, नहीं तो मैं आपको ये लिस्ट भी दे सकता हूं कि पाकिस्तान के बड़े बड़े हवाला करने वाले कौन हैं। इसमें किस पर्दादार का नाम आता है, क्योंकि ये सारा खेल हवाले पे चल रहा है। जितनी भी आपकी चाइनीज की अंडर इनवाइसिंग हो रही है इस वक्त, प्रोडक्ट जो आती है, अंडर इनवाइस प्रोडक्ट आती है, उसकी पेमेंट कैसे होती है? हवाले से होती है। तो ये एक इज अ सिंपल केस। तो आप जब क्रिप्टो करेंसी को लाते हैं तो आप हवाले को आसान कर देते हैं बेसिकली। अच्छा जी, सेकंड लास्ट स्लाइड है मेरी। अभी रिसेंटली परसों का वाकया है। ड्यूरिंग द सेनेट कमेटी मीटिंग ऑन वेडनेसडे, co-chaired by the Senator Salim Mandriwala and Mr. Abdul Qadir, participants discussed the growing concern around the use of crypto for criminal activities. Senator Mohsin Aziz highlighted that the kidnappers now demand ransom in gold or crypto instead of cash, adding that the banned organization in Sindh and Khyber Pakhtunkhwa were also using digital currency to secure foreign funding. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सेनेट की कमेटी में डिस्कस हुआ है। वो कहते हैं यार मुझे गोल्ड दे दो या बिटकॉइन दे दो, उसका ट्रेल नहीं होता कोई। तो क्रिप्टो करेंसी, इसका मतलब है यहां पर एग्जिस्ट कर रही है, सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही है। इट इज नॉट दैट। Dr. Inayat Hussain, Executive Director of State Bank of Pakistan, shared that the central bank was considering two options, either banning cryptocurrencies outright or regulating them. He noted that younger generation have greater engagement with digital assets, which complicates the decision. Dr. Inayat साहब ने ये वहाँ कहा और ये उनकी बिल्कुल सही बात है। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, हम इसको एब्सोल्युटली बैन कर दें, मगर वो बैन करने का कोई फायदा नहीं है, मकसद ही नहीं है। आप क्या कैसे बैन करेंगे? आपको क्या पता कि मैं क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहा हूं? कोई वही आई है आपको, मैं कर रहा हूं घर बैठे कंप्यूटर में बैठा क्रिप्टो करेंसी में, आपको क्या पता? स्टेट बैंक को क्या पता? स्टेट बैंक कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि मैं क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहा हूं? उसे क्या पता? वही तो नहीं आई ना उसको।
मेरे पास कंप्यूटर है, मेरे पास उसका लॉगिन है, मैं जाके क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहा हूं। किसको पता कि मैंने डील किया है? ठीक है। और दूसरा ये कि रेगुलेटिंग देम, रेगुलेट में आप रेगुलेटिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि आपकी फ्री एक्सचेंज नहीं है। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। हमने अनफॉर्चुनेटली ही नोटेड यंगर जनरेशन, अब वो ये कह रहा है, नायत ये कह रहा है कि बच्चे लगे हुए हैं, उनको लगा रहने दो, ये कह रहा है बेसिकली, ये कह रहे हैं ना यंगर जनरेशन का बड़ा परसेप्शन है। अब वो इस पे कह रहे हैं कि जी यार यंगर जनरेशन बड़ी इंटरेस्टेड है क्रिप्टो करेंसी में, तो बच्चों का शौक है, वो इस तरह डिजिटलाइज हो रहे हैं, तो लगे रहने दें। दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। तो मेरा जो लास्ट स्लाइड है वो इसका पूरे किस्से का कंक्लूजन है, आर वी लेट और टू फास्ट। मेरा सवाल इस पे ये क्रिप्टो करेंसी में ये है, क्या हम पीछे चल रहे हैं या हम बहुत तेज आगे बढ़ गए? हमारा केस जो है, क्या क्रिप्टो करेंसी में हम पीछे चल रहे हैं या हमने बहुत आगे जंप मार दी है? मेरा ख्याल है कि हम जो है, क्योंकि हमारा मैकेनिज्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और हमारे यहाँ हवाले की पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमारा $30 बिलियन का इनवर्ट रेमिटेंस है और हमारे यहाँ करप्शन का लेवल बहुत हाई है और हवाला बहुत हाई है, तो हमारे यहाँ क्रिप्टो करेंसी का काम बड़े बड़े पैमाने पर हो रहा है। अब उसको आप रेगुलेट नहीं कर सकते। ये अगर किसी का ख्याल है, स्टेट बैंक का ख्याल है कि वो बिटकॉइन को रेगुलेट कर लेगा, तो उसको बिटकॉइन की पूरी बात समझ नहीं आई आज तक। बिटकॉइन रेगुलेट नहीं हो सकता। फिर आप, अमेरिका भी जीडीएस एक्ट में ये कह रहा है कि मैं बिटकॉइन को रेगुलेट नहीं कर रहा, मैं अपना बिटकॉइन इशू कर रहा हूं, ये वाला ले लो। अमेरिका ये नहीं कह रहा कि बिटकॉइन को रेगुलेट कर रहा हूं, वो कह रहा है यार मेरे बिटकॉइन आपके चल रहे हैं ना मार्केट में, ये तो है, ये रेगुलेटेड नहीं है, मैं भी एक इशू कर रहा था बिटकॉइन, आप उस बिटकॉइन में जो डील करनी है तो मेरे वाले से कर लो। अमेरिका से ज्यादा नहीं कह रहा। मैंने कोई 4-5 वही 3-4 काइंड के बिटकॉइन इशू कर रहा हूं मैं, अमेरिकन जीनियस एक्ट में कह रहे हैं, आप उनमें से कोई ले ले। पाकिस्तान भी ये कह रहा है कि हम टोकन इशू कर रहे हैं, आप उनमें से ले ले। मगर जो पाकिस्तानी ऑलरेडी इंटरनेशनली इशूड बिटकॉइन में सौदा करके बैठा है, वो क्या करेगा? और वो है, ये रियलिटी है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, वो है। अब ये मैं तो बड़ा क्रेडिट देता हूं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स को, कि आई थिंक वो पहला इदारा है जिसने इस सब्जेक्ट के ऊपर सीरियस गुफ्तगू के लिए लोगों को बुलाया है। मतलब ये मैं क्रेडिट देता हूँ। मैं बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट चार्टर पाकिस्तान और ICMA और बड़े बड़े बैठे हैं और वो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डिस्कस नहीं कर रहे कि यार ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। मतलब ये क्रिप्टो करेंसी आ गई, एक बंदा एडवाइजर भी हो गया प्राइम मिनिस्टर साहब का। और वैसे भी आजकल ये नए नाम जो है ना, ये बिन वाले मुझे वैसे ही समझ नहीं आते। खालिद बिन वलीद और ये जिस तरह के नाम जो आ गए ना, ये पहले हमारे यहाँ नहीं हुआ करते थे। ये भी नया स्टाइल है, ये अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला, ये नई कैटेगरी है। तो आप दिखा दें मुझे कोई 50 साल पहले कोई बिन वाला आइटम है? हाँ, बिटकॉइन है, ये मुझे बता दें कि 50 साल पहले कोई बिन नजर आया? मैं तो पहली बार बिन देख रहा हूँ। मासूमा बाजी बैठी है, मुझे बताएं कितने बिन होते थे हमारे यहाँ? ये भी नए नए बिन आए सारे, पहले तो नहीं होते थे ये बिन। आपको बता दें कोई बिन वाला देखा? कोई मोहम्मद अली जिन्ना इब्ने जिन्ना पूजा, मोहम्मद अली जिन्ना का नाम चाहिए, मोहम्मद अली इब्ने जिन्ना पूजा, यही होना चाहिए ना। अब ये बिन वाले आ गए सारे। अब तो बिन वाले पता नहीं क्या करने आए, मुझे तो समझ नहीं आ रही। तो ये जो आपने क्रिप्टो करेंसी पर आपने एक, मतलब जिसे कहते हैं ना, आपने एक बैंड वैगन में हाथ डाल दिया है कि यार हम कुछ करने वाले हैं। आप कुछ नहीं कर सकते। लेट अस बी क्लियर, आपके हाथ में कोई चीज नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में आपके हाथ में कोई चीज नहीं है, आपके हाथ से बाहर है वो। आप उस चीज को रेगुलेट कर रहे हैं जो आपके हाथ में नहीं है। आप यही करोगे ना, वर्चुअल एसेट एक्ट में एक नया टोकन इशू कर दोगे, लोग उस टोकन में डील ही नहीं करेंगे। लोग तो उस टोकन में डील करेंगे ना जिसकी इंटरनेशनल मार्केटेबिलिटी है, वो क्यों आपके टोकन में हैंडल करेंगे? तो मेरा ये सवाल है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है और ये जो मैटर्स हैं, ये पाकिस्तान की
इकोनॉमी में, पाकिस्तान के माशरे में, पाकिस्तान के सोसाइटी में ये बड़े रेलिवेंट सब्जेक्ट्स हैं. एंड आई गिव कम्प्लीमेंट टू द पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स कि उन्होंने ये चीज़ इस पर सेमिनार किया. जब ये पूरा क्रिप्टो करेंसी वाला सिलसिला शुरू हुआ तो आपको पता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है. पहला बयान उनका यह आया था कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है. फिर उनको बेचारों कहीं से फोन आया होगा, उन्होंने कहा यार अभी चलाओ एक्ट लाओ. वो एक्ट ले आए बेचारे, वो उन्होंने जीडीएस एक्ट से काटा पीटा पेस्ट किया, वो चला दिया. ठीक है. अच्छा, अब मेरी बदकिस्मती ये है कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम है. जब मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करता हूं, जब आईटी वाली बात करता हूं, अब पता नहीं इस पे अल्लाह ताला की रहमत है या क्या वजह है, आईटी या क्रिप्टो करेंसी की जब भी बात करता हूं तो जो चेहरा मेरे सामने आता है वो हमेशा बिल्कुल निहायत ही क्या कह सकता हूं, मुत्तकी होता है. इससे मेरी गुफ्तगू नहीं हो पाती. आप मेरी बात समझ रहे होंगे राशिद साहब. वो बिल्कुल ऐसा होता है कि जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि अभी अभी मदरसे से आया है, तो वो मुझे उससे मेरी कम्युनिकेशन डेडलॉक हो जाती है. तो ये पता नहीं मेरी बदकिस्मती है या ये कि वहाँ से नूर आ रहा है जो हमें हमारे अंदर नहीं आ पा रहा. वो नूर जो आ रहा है वो हमें नहीं मिल पा रहा क्योंकि हमारे जिस्से में वो ताकत नहीं है. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कमिंग बैक, कंक्लूडिंग द मैटर, डिजिटल इकोनॉमी एंड क्रिप्टो करेंसीज are the major subject for the future world. आप इस सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते. मगर पाकिस्तान की जो फ्रेजाइल फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन है, जो कि फ्रेजाइल आज भी है और आइंदा भी फ्रेजाइल, कोई इम्प्रूवमेंट के चांस नहीं है, उस फ्रेजाइल फॉरेन करेंसी रेगुलेशन में आप इस तरह का एडवेंचरिज्म नहीं कर सकते. इसमें कोई एडवेंचरिज्म नहीं हो सकता कि आप कोई ऐसी कहानी पेश करें और फिर 2 साल बाद हम खड़े होकर ये कहें हाँ यार क्रिप्टो करेंसी आई थी, आज हम बैन कर रहे हैं, और उसमें $2 बिलियन निकल गया पाकिस्तान से. ये हमें नहीं, हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये हो. दिस इज व्हाट माय कंक्लूजन. एंड द इंस्टीट्यूशंस लाइक PIIA who are raising these issues are commendable, and this is why I am available for any answer of any question. Thank you very much. सब कुछ नहीं हुआ उनके बारे में, जिनका दूसरा नाम पॉलिटिकल. क्या पूछ रहे स्टेट बैंक हैं? 1 मिनट प्लीज जी. कि वो क्यों नहीं, वेब सिर्फ बता दो कि उनको कहाँ है. अच्छा, एक सवाल उठा है. Some of the members of the audience want to know. There were 2 speakers for this session, Shabba Zaidi Saab and Dr. Inayat Hussain, who is the Deputy Governor of the State Bank of Pakistan. But Dr. Inayat Hussain, for some reason, was not able to attend because he was called away to Islamabad for a very urgent meeting. So I want to clarify that. But although we miss his presence, it doesn't really matter because Shabbar has given us a very sweeping and a very insightful and also in parts a very humorous discussion on the subject of digital economy and cryptocurrency in Pakistan, possibilities and concerns. So with these few words, I want to open the floor for discussion. किसके पास है माइक? अर्शद साहब को दो. Hello. Okay. Thank you very much. It was a very informative for me. I'm one of those people who just know that cryptocurrency is a fashionable word. What I understand from currency is that any country or the central bank that issues these currencies, or whatever currency they have, was backed by certain asset which is gold. Cryptocurrency or whatever, what asset will back this? So that's my question. No asset. So then how do we know that it will not collapse or vanish? That's the risk you are taking. Okay. No, but that's exactly what question. Nice question.
when we are going for this regulation in Pakistan and in the Genius Act, this is exactly what we are trying to do. That we are trying to bring a cryptocurrency which is regulated, which means that it has got some asset back. So when you will be dealing in the cryptocurrency, then you will be knowing that the party which has issued the cryptocurrency is not completely fraud, and somebody regulator has reviewed the financial statements or whatever it is. So the objective of the cryptocurrency regulations, which is Genius Act and the Pakistani Virtual Asset, is exactly what the question is. That I want to deal in a cryptocurrency and there is no backing. Then at the next day that account is finished. So what is the backing? Nothing. But that is the trust. In the ultimate time, there will be an organization where there will be no backing. And the whole thing will work on the trust. That is the ultimate position. Yes. Hello, my name is Safa. I have a question. If cryptocurrency is not regulated in Pakistan, won't that be a gateway for mafias to convert their black money into white money? No. A question is that at the moment you have a black money in rupee. So you, at the moment, in the legal form, you cannot buy the cryptocurrency because the cryptocurrency seller will not accept your rupees. So he will ask the dollar. But there may be hawala dealer in cryptocurrencies who say you pay me rupee and some commission, then I will arrange you dollar in cryptocurrency, which is happening. वो ये करेगा आपसे मैडम कि वो आपसे 100 रुपए लेगा और 5% कमीशन रखेगा, 7% कमीशन रखेगा और आपको क्रिप्टो करेंसी दे देगा इक्वलेंट टू 93 की. तो वो टेक्निकली हवाला लेने के बाद आपको करेंसी मिल जाएगी. ये काम धंधा होगा और ये हो रहा है कि वो उसमें अपना हवाले का मार्जिन निकाल के आपको दे देगा क्रिप्टो करेंसी. तो ब्लैक का मनी मेरा व्हाइट हो जाएगा. ठीक है ना जी. अस्सलाम वालेकुम सर माय नेम इज़ हसन. मेरा एक सवाल ही है क्योंकि अभी आप ज़्यादा उर्दू में ज़्यादा अच्छा बोलते हैं तो मैं उर्दू में ही सवाल करता हूँ आपसे. अभी देखिए, एक तो मसला ये है कि हमारे पास टैक्स की कलेक्शन हो जाए, गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट है. दूसरा, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हैं, अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी इतनी ज़्यादा है, वो ऑलरेडी संभल नहीं रही इन लोगों से. अब ये नया एक मीडियम इंट्रोड्यूस कर देंगे जो कि अनचेक्ड होगा और उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आ जाएंगे. तो ऐसा होगा कि अभी तो लोकल गैंग्स हैं, फिर रीजनल गैंग्स आ जाएंगे, फिर इंटरनेशनल गैंग्स आ जाएंगे जो कि डायरेक्टली इफेक्ट करना शुरू कर देंगे लोगों को. उसके लिए सर क्या मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई कर दूं. देखिए, बात सुने. आज पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन क्रिप्टो में डील नहीं कर रहे. आज कर रहे ना. पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या लोग जो क्रिप्टो में आज डील हो रही है ना, तो अब जो एक्ट लाए हैं उससे कम से कम ये तो है ना कि अब जो इनके अलावा क्रिप्टो है वो इलीगल हो गई. आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? उस सेंस में ये गलत नहीं है कि आपने कहा कि आपके आज पाकिस्तान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो बिटकॉइन बाय करता है, आपको बिटकॉइन देता है, आप जाके एनकैश कराते हो, पैसे मिल जाते हैं. ये होता है ना. आज मुझे आपको पैसे देने हैं डॉलर में, तो मैं बिटकॉइन बाय करूंगा, वो आपको दूंगा, आप जाके उनसे एनकैश कराओगे, पैसे मिल जाएंगे. तो यही होगा ना. तुम्हें पैसे मिल जाएंगे डॉलर में, मुझे यहां बैठ के डिजिटल में सारा तुम्हारा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. यही होगा ना. तो आज भी तो ये काम हो रहा है ना. अब जब मैं कह रहा हूं कि मैं वर्चुअल एसेट एक्ट ला रहा हूं, ले आया हूं, तो उसमें मैंने 2 तरह के टोकन इशू किए हैं. ठीक है. अब अगर आज मैं वो बिटकॉइन में डील कर रहा हूं तो टेक्निकली मैं ऐसी चीज में डील कर रहा हूं जो पाकिस्तान में टेक्निकली इलीगल है. तो मेरा कहना है कि जो लेकर आए इसमें नुकसान कोई नहीं है. मगर अगर ये समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में से हम कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं या हम इससे कोई बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट ले आएंगे या कोई इसमें कोई बड़ा कोई रॉकेट साइंस है, तो ये गलत है. डिजिटल इकोनॉमी एक बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है.
और क्रिप्टो करेंसी एक बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। ये दोनों को मिक्स करके चलने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसीज आज भी एग्जिस्ट कर रही हैं, उस पर लोग डील कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने बात की, वो 100% रिस्क ले रहा है ना अपना, वो रिस्क ले रहा है ना, बिटकॉइन ले रहा है। वो जब बिटकॉइन ले रहा है वो, तो उसको उसके पीछे बैकिंग तो कोई नहीं है ना। उसने डॉलर कहीं से भी लाके उस बिटकॉइन में खोल लिया ना, अपना वॉलेट खोल लिया है। तो आज भी तो काम हो रहा है ना, काम तो आज भी हो रहा है ना। तो जो इसलिए, मगर इनको ये चाहिए कि ये मतलब डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करें कि हम कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने जा रहे हैं। और मैं तो यहां भी सुना था कि वो पावर हाउस लगा रहे हैं कि वो क्रिप्टो करेंसी में डीलिंग होगी, उसके लिए पावर जनरेशन बढ़ा रहे हैं। ऐसा कोई, ये तो मतलब ये बेवकूफ़ी की बातें तो नहीं करें यार। कि कौन सा पावर चाहिए क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजेक्शन होगी, क्या बातें करें। मतलब ये ना, ये लोगों को समझ बड़ी, मैं दोबारा कह रहा हूं कि मैं क्रेडिट देता हूं PII को, उन्होंने सवाल ये सचेत तो किया कि लोगों को समझ तो आए कि आप क्या बात कर रहे हैं जी। माइनिंग क्या मतलब यार, कंप्यूटर ही चला रहा है ना। माइनिंग कौन सी यार, बिजली चल रही है ना, इंटरनेट ही चल रहा है ना। कोई माइनिंग, कोई फिजिकल माइनिंग हो रही है यार। तो मतलब मेरा तो ख्याल है वो फिजिकल माइनिंग समझ रहा है कि कोई हम जाके समुद्र में घुस रहे हैं। यार माइनिंग में क्या होना है, इंटरनेट चल रहा है ना, इंटरनेट होगा ना। क्या इंटरनेट में कितनी खर्च होती है? ठीक है, आपको नहीं तो ये देखिए ना, ये बेकार की बात है ना यार। इंटरनेट आज भी चल रहे हैं, लोगों में वो सारा दिन बैठ के लोगों की तकरीरें सुन रहे हैं, बिल्लाबाजी की चल रही है। तो इंटरनेट तो आज भी चल रहे हैं। ये मतलब माइनिंग में बिजली आएगी और ये आएगा, ये बेकार की बात है, नहीं करें जी। वो सर वो राशिद कुछ कह रहे हैं। हाँ राशिद, हाँ अच्छा शबर साहब, वन क्वेश्चन यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड अबाउट द फैक्ट कि इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन क्या होगी इस क्रिप्टो की वजह से। डिजिटल की नहीं, डिजिटल के नहीं, डिजिटल तो एक अलग है। क्रिप्टो की वजह से इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन किसी भी मुल्क में क्या होगी? सेकंड, मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है जिसके ऊपर थोड़ा सा प्लीज शेड सम लाइट ऑन दैट। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, चूंकि आप थोड़ा सा अंदर के लोगों से भी आपके रवाबित हैं, तो ये जो कमेटी बनी, एडवाइजर फॉर क्रिप्टो लाए गए, ये फ्लोरिडा में ट्रंप के बेटे और दामाद के साथ इन्होंने कन्वेंशन भी अटेंड किया जिसके अंदर क्रिप्टो की बात हुई। और अभी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट थी कि पिछले 10 महीनों में ट्रंप एंड फैमिली ने $3.4 बिलियन अपना रेवेन्यू बढ़ाया है, जिसमें से $2.4 बिलियन वाज फ्रॉम देयर क्रिप्टो बिजनेस, जिसके अंदर इनके दामाद भी हैं, जिसके अंदर इनके बेटे भी हैं और जिसके अंदर इनका बहुत छोटा वाला जो बेटा है वो भी है। तो ये मैं चाहूँगा कि ये क्या दोनों का लिंक है? हम मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन से अच्छी रवाबित बढ़ाने के लिए वी वांटेड टू हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद देम, तब ये कमेटी लाई है हमने। और ये साहब जाके बात भी कर रहे हैं एरिक और दूसरे इवांका ट्रंप वगैरह से, ये इसके लिए है और क्या पर्पस है इसका? अदरवाइज मैंने जो पढ़ा था, उन्होंने कहा कि लोगों ने पूछा कि जी डॉलर अगर नहीं है हमारे पास, वी आर डॉलर स्टार्विंग कंट्री, वी आर डेफिशिएंट इन दैट, हाउ वुड वी इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी? तो उन्होंने कहा कि जो ये चोरी के जो क्रिप्टो पकड़े जाएंगे हम उसको री इन्वेस्ट करेंगे। वन ऑफ द थिंग्स, उनकी थीम ये थी। इन दो चीजों के ऊपर मैं थोड़ा सा आपका चाहूंगा। मेरी बात सुने, क्रिप्टो करेंसी जिस तरह मैंने कहा कि जो पेपर करेंसी है और फेडरल रिजर्व की इशू हुई करेंसी है, ये कोई आइडियल मॉडल नहीं है। आइंदा दुनिया जब जाएगी तो ये वर्चुअल करेंसी आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। ये नोट शोट खत्म होना है ना, अल्टीमेटली तो ये खत्म होना है और एक वर्चुअल करेंसी आएगी जो के डील करेगी, वो क्रिप्टो ही होगी, एनक्रिप्टेड ही होगी ना। मतलब मकसद है कि वो फिजिकल नोट नहीं होगा। तो क्रिप्टो इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन इस फॉर्म में करता है कि उसके अंदर ये पूरा रेगुलेटरी सिस्टम खत्म हो जाता है। आप समझे, रेगुलेटरी सिस्टम खत्म हो जाता है। आज आप डॉलर पे पैग है ना राशिद साहब, आज आप ये चीज खरीदते हैं ना, आप कहते हैं ये चीज $10 की है, तो डॉलर की वैल्यू इसकी चीज की वैल्यू के साथ लिंक्ड अप है। जब क्रिप्टो होगा तो वो डॉलर की वैल्यू का पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट निकल गया। आप समझे, आपने एक ऐसी करेंसी में डील किया है जिसके अंदर डॉलर का रिलेशनशिप नहीं है और आप डील कर रहे हैं
एक ऐसी चीज से जो टेक्निकली डायरेक्ट बार्टर में चली गई है, इन दैट सेंस। आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? आज आप कहते हैं ना, आज आपने पता होगा आपको कि जो यूएई की करेंसी है वो पैग है डॉलर के साथ, ठीक है? आपको अगर याद हो कि 1974 से पहले हम भी डॉलर के साथ पैग थे, ठीक है ना? तो आप आज टेक्निकली डॉलर के साथ अभी भी पैग्ड है ना। आप जब चीज खरीदते हैं तो अगला वाला डॉलर में आपको कोटेशन देता है ना, ठीक। अच्छा, ये तो हो गई वैल्यू एडिशन, जो आई वुड से इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन ऑफ क्रिप्टो, जो इस डिफरेंस को निकाल देगा। आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? आज सारी आपकी जो एलसीआर खुल रही हैं वो न्यूयॉर्क से सेटल होती है ना। जब आप क्रिप्टो में डील करेंगे तो न्यूयॉर्क तो जाना नहीं पड़ेगा ना आपको तो न्यूयॉर्क के एक्सचेंज के थ्रू नहीं जाना ना। यू आर डीलिंग इन अ क्रिप्टो वैल्यू ना। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। जहां तक ये जो आप बात कर रहे हैं ट्रम्प की और उनकी फैमिली की और इसकी और उसकी, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता, मगर मैं ये कहता हूं कि यार मलिक रियाज तो हर मुल्क में होते हैं ना, तो वो आप उनको उसी तरह देखें ना यार। आप उनको ये क्यों एग्जामिन करते हैं कि वो कोई जीनियस है अमेरिकन फाइनेंस के? व्हाई यू आर ट्रीटिंग लाइक देम? अमेरिका इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, देयर आर पीपल। तो ये तो एक वन ऑफ द फैमिली है जो कारोबार कर रही है। अब वो क्या कर रहे हैं उस पर हमें कोई, उससे ना दुनिया की इकोनॉमी चेंज होने जा रही है ना उससे वर्ल्ड इकोनॉमी चेंज होने जा रही है। और मैंने आपको जिस तरह कहा कि फेडरल रिजर्व के साथ ट्रम्प की रिलेशनशिप इसी वजह से टेंशन में है जा रही है क्योंकि वो उन चीजों के अंदर इंटरफेरेंस की बात उनको नजर आ रही है जहां पर अमेरिकन सोसाइटी या स्टेट का प्रॉब्लम नजर आ रहा है, ठीक है? आप कुछ कहते हैं रियाज अड्डी? हाँ, आप कुछ सवाल है आपका रियाज? क्या है जी? उस टेक्नोलॉजी के बारे में ज़रा बताएं ना आप, कि वो जो आप कह रहे हैं कि टोकनाइजेशन करने के लिए जा रही है गवर्नमेंट, वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर एक टेक्नोलॉजी जिसको यूज़ करी है, जिसके अंदर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, रेगुलेशन नहीं होती। एग्जैक्टली, इट्स बिकॉज ऑफ के जो नोड है, जो कंप्यूटर के सिस्टम में जो सारे मौजूद हैं, सबके पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, सबके पास एक एक कॉपी पड़ी हुई है। और जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो सारी जो है ब्लॉकचेन के ऊपर सारे लोग जो है वो अपडेट होते हैं, और उसकी वजह से आपको कोई सेंट्रलाइज लोकेशन की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए क्रिप्टो करेंसी का वजूद हुआ था। जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है, उसके बाद दुनिया ने कहा कि ये हर दफ़ा बैंकिंग क्राइसिस में हमारे पैसे चले जाते हैं, वी नीड समथिंग जो बिल्कुल ही डिसेंट्रलाइज हो। तो हम जिस दुनिया की बात कर रहे हैं वो डिसेंट्रलाइज दुनिया है। हाँ बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं। तो अनरेगुलेटेड तो दुनिया है। आपकी डिस्कशन में ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो बिल्कुल ही मिसिंग है, वो उसकी बिल्कुल भी बात नहीं हुई। तो अगर आप नहीं, मैं समझाता हूँ। आप ये कह रहे हो ना कि बिटकॉइन है, अब बिटकॉइन का डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ पाकिस्तान भी होगा ना जी, ये कह रहे हैं ना आप टेक्निकली। मगर ये जो आपने जिस आदमी का नाम लिया, जिसका नाम लिया, क्या जिसका, ये क्या एग्जिस्ट करता है? नहीं एग्जिस्ट करता ना। नहीं, देखिए मेरी बात सुने ना, ये जिसका आपने नाम लिया, ये आदमी की कोई तस्वीर आपके पास है? नहीं, प्रोफाइल है? नहीं, देखिए ना कोई प्रोफाइल है, ना उसका कोई बैकग्राउंड है, ना कोई फाइनेंशियल हिस्ट्री है, यही है ना? दैट बट इज अ ट्रस्ट। नहीं, मैं तो ये एग्री कर रहा हूं ना कि एक वर्चुअल चीज है जिसपे लोगों का ट्रस्ट है, सिंपल एज दैट ना। चाहे वो मैं इशू कर दूं या वो नहीं पूछा मैं मान जाऊं। नहीं, मगर देखें एडी रियाज, मैं ये कह रहा हूं इस पर टेक्नोलॉजी का इतना काम नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। देखिए ना, टेक्नोलॉजी तो मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर सकता हूं। मुझे बताएं ना, आप जब आप क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो आप किसी ऐसे मीडियम एक्सचेंज की बात करते हैं ना जिसके पीछे कोई बैकिंग नहीं है।
जिसके पीछे कोई रेगुलेशन नहीं है, जिसकी कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, जिसका कोई आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग? कैन यू से कि बिटकॉइन की बैलेंस शीट क्या कह रही है? हैं? वो ये कह रही है कि 30 क्या जी? किसके पास? जीनियस एक्ट आएगा ना अमेरिका में, तो अमेज़न है, वॉलमार्ट है, ये सब कॉइन इशू करेंगे अगेंस्ट अपने बैलेंस। नहीं, वो एक अलग चीज है, वो अभी नहीं की है ना। मैं बात कर रहा हूं आज जो बिटकॉइन है उसकी बैलेंस शीट क्या कह रही है, किसी को नहीं पता ना, बैलेंस शीट है भी या नहीं है। ठीक है ना? तो मैं ये कह रहा हूं ये जो सिस्टम है ये अल्टीमेटली आएगा। मैं ये कह रहा हूं अल्टीमेटली यही होना है। बट अभी आज हम जो बड़ी अच्छी बात राशिद ने की, हम एक फॉरेन एक्सचेंज स्टार्विंग कंट्री है। ठीक है, हम क्या इन चीजों के अंदर जम मारने के लिए तैयार हैं? जो खातून ने बात की थी, क्या हम जम मारने के लिए तैयार हैं? मैं कम से कम 20 ऐसे खानदानों को जानता हूं, बट एक ज्यादा उम्र वाले जिनके घर हैं डिफेंस में, वो कहते हैं यार अम्मा अब्बा रहते हैं, बस बेच के किसी तरह पैसे अमेरिका भिजवा दे। जानते हैं, आप भी जानते होंगे। ठीक है ना? यही होता है ना कि यार अब वालिदैन रहते हैं, अब ये इनके बाद तो घर बेच के तो अमेरिका, मेरे बच्चा तो अमेरिका में रहता है, अमेरिका भेज दें। तो हमारा जो सोशल मैकेनिज्म है उसमें हम इस तरह के रिस्क ले नहीं सकते। जी, कोई और सवाल? आप कुछ कहते? पीछे से बहुत देर से। जी, आप कुछ कह रहे थे? जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ मोहसिन हैदर लोधी। मैं ज़रा आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ऑलरेडी आपने डिस्कस किया कि हम लोग इसको रेगुलेट नहीं कर सकते, राइट? तो हम लोगों के पास ऑलरेडी जो हमारी करेंसी है वो ब्लैक इकोनॉमी है, हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट नहीं कर पा रहे। तो अगर क्रिप्टो करेंसी को इस रेगुलेशन को हम लोग हवाले के साथ कनेक्ट कर लें एंड ऑल दिस मनी इज गोइंग टू कैपिटल इज गोइंग टू फ्लाई आउट ऑफ द कंट्री, तो हमारा ऑलरेडी जो गैप है बिटवीन द रिच एंड द पुअर इज़ वेरी वास्ट। तो ये ज़्यादा बढ़ नहीं जाएगा? हम लोग एक नई पेंडोरा बॉक्स नहीं खोल रहे? देखिए, मैंने कहा ना, देखिए बात सुने, मैंने कहा ना कि मेरा तकरीबन 160 बिलियन का या 150 बिलियन का अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। ठीक है? अच्छा, अब वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी पाकिस्तान में ही रोल आउट होता रहता है। ठीक है? अब जो वो बच्ची बात कर रही थी, वो यही कह रही थी ना कि अब इसको पाकिस्तान से बाहर ले जाने की कोशिश करेगा वो। ठीक है? वो क्रिप्टो करेंसी उसको ईज आउट करेगा। ठीक है? उसको हमें ईज आउट की जगह नहीं देनी चाहिए। तो अभी जो हमने एक्ट बनाया है उसमें हमने ईज आउट की जगह नहीं दी है, उसको ईज आउट की जगह नहीं दी है। ठीक है ना? अब बड़ी अच्छी बात है कि हमारी सेनेट की कमेटी ने ये कहा कि ये टेररिज्म में इस्तेमाल हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो लोग हैं, जो सेंसिबल लोग हैं, वो इसको समझ रहे हैं, वो समझते हैं, जानते हैं कि ये क्या चीज़ है और ये क्या क्या काम है। ठीक है? मैं 40 साल तक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूँ, बड़ी फर्म में रहा हूँ। तो मैं जब कोई 2 साल पहले दुबई जाता था, अपने इंग्लैंड जाता था, जो मेरे यंगस्टर, मेरे जो रिश्तेदार जानने वाले हैं, जो बच्चे क्रिप्टो में खेलते रहते थे, जब मैं उन्हें कहता था तुम क्या कर रहे हो, वो कहते नहीं जी, इट्स टू एडवांस फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो मैं कहता था यार ये क्या तुम कर रहे? नहीं नहीं नहीं, बस छोड़ दें आप, मैं कोई रॉकेट साइंस हूँ, मतलब मैंने कोई रॉकेट साइंस ढूंढ ली है, मैं आपको पैसे बनाता रहता हूँ बैठ के, इसमें रोजाना पैसे बनाता हूँ, खरीदता हूँ बेचता हूँ, खरीदता हूँ बेचता हूँ। मैंने कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी है। तो मगर अब 3-4 साल के बाद अब उनको थोड़ा सा एहसास हो गया कि ये बकवास है, ये सिर्फ जुआ है। जुआ तो आप गैम्बलिंग जिस तरह मर्जी कर ले, गैम्बलिंग ही है ना। बिटकॉइन खरीदे, बिटकॉइन बेचे। जी, बिटकॉइन के साथ और भी तो काफी आए थे जो क्रश कर गए। क्या जी? बिटकॉइन के साथ और भी करेंसीज आई थी मार्केट में जो क्रश कर गई, वो काफी मतलब नहीं, वो मैं ये करो ना, देखिए बात ये नहीं है, मेरा तो मसला बड़ा सिंपल सा है इस वक्त। वो है कि मैं बिटकॉइन खरीदूंगा कैसे? वो मुझे रुपये में तो बिटकॉइन नहीं देगा ना यार, वो तो मुझे डॉलर मांगेगा ना, डॉलर में कहां से लाऊंगा? जी, ब्रिक्स क्या मतलब? ब्रिक्स जो नई करेंसी इंट्रोड्यूस हो रही है, नहीं मगर रुपये में तो नहीं मिलेगी ना। फॉर एग्जांपल इफ दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द ब्रिक्स क्रिप्टो करेंसी। नहीं, अब उन्होंने मना कर दिया ना। मैंने कहा जब से हम वर्चुअल एक्ट लेकर आए हैं, अब सिर्फ वो वर्चुअल करेंसी होगी जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान अप्रूव करेगा। वो पूछ रहे हैं, वो ही probably asking about the likely currency
evolving. for अच्छा the ब्रिक्स, अच्छा BRICS सॉरी ब्रिक्स, countries, the अच्छा ब्रिक्स, यस। नहीं, वो जो आप कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो उनका वो तो आप बात कर रहे हैं डिसअप्रूविंग डॉलर अगेंस्ट द करेंसी अदर देन डॉलर, यही कह रहे हैं ना। मगर वो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि चाइना के सारे एसेट अमेरिका में पड़े हैं। चाइना का जो रिजर्व है ना इस वक्त, वो कहाँ है रिजर्व? यूएस में इन्वेस्टेड है। अबे भाई, जो चाइना के जो चाइना का रिजर्व है वो किस करेंसी में है? तो वो क्या आप उसको वापस करेंगे? क्या करना चाहते हैं? और वो तो उसको बढ़ाते जा रहे हैं ना एक्सपोर्ट के थ्रू, वो तो उनको सूट कर रहा है ना। तो ब्रिक्स तो उस वक्त आएगी जब वो वाला एसेट रिलीज होगा। अभी तो देखिए ना, चाइनीज के लिए चाइनीज का जो नेट एसेट है फॉरेन रिजर्व, वो पॉजिटिव में है और वो अमेरिकन फेडरल रिजर्व के पास है। द बिगेस्ट क्रेडिटर ऑफ यूएसए इज चाइना, ठीक है ना। तो अब चाइना वाला ब्रिक्स नहीं ला सकेगा ना। ब्रिक्स की इकोनॉमी जरूर आगे आएंगी, मगर शायद ब्रिक्स वाली करेंसी शायद आगे नहीं आए। मगर डॉलर आहिस्ता आहिस्ता अपनी वैल्यू खोता जाएगा जैसे जैसे वो खत्म होती जाएगी। अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ना चाहें तो कभी आप पौंड स्टर्लिंग की हिस्ट्री पढ़ लें। एक जमाने में पौंड स्टर्लिंग वाज दी करेंसी, ठीक है। आज उसकी जगह पे डॉलर आ गया। अब बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद युआन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नहीं, ब्रिक्स तो युआन की ही, ब्रिक्स के पीछे तो युआन ही है ना। ब्रिक्स में जो बड़ी कंट्री है, जो पॉजिटिव कंट्री है, वो तो युआन है ना। बाकी सबकी तो इकोनॉमी में नेगेटिव आता है ना। चाइना इज द ओनली इकोनॉमी जिसके पास पॉजिटिव सरप्लस है, ठीक है ना। ब्रिक्स में ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और शायद एक साउथ अफ्रीका है, ठीक है ना। अब इसमें जो पॉजिटिव कंट्री है, बड़ा पॉजिटिव, जिसका अमेरिका के साथ पॉजिटिव ट्रेड है, वो चाइना है ना। तो आप युआन, अमेरिका मुस्तकिल रोता रहता है कि चाइना ने युआन को अंडर वैल्यू किया हुआ है, अंडर वैल्यू को। उनकी कहानी ये है, ठीक है। तो वो अभी तो चाइना के लिए सूट करता है कि वो डॉलर के साथ पैक करके चलता रहे और डॉलर को यूज करता रहे, क्योंकि वो उनकी एक्सपोर्ट मार्केट को चला रहा है, ठीक है। तो ब्रिक्स की जो आप बात करें, ब्रिक्स की करेंसी आने में टाइम लगेगा अभी। जी, आखिरी सवाल शबर साहब, मेरा एक सवाल है आपसे मैडम। ये सवाल नहीं है ये। आखिरी, आई एम सॉरी, मैं समझा आप क्योंकि वॉच देख रही थी, मैंने कहा शायद आखिरी नहीं, नहीं, मैं- यू विल डिसाइड व्हिच वुड बी लास्ट क्वेश्चन। ऑफ कोर्स शबर साहब, अभी आपने अपना काफ़ी इनरिचिंग आपका लेक्चर रहा। आपने एक ऑब्जर्वेशन दी, आपने फरमाया कि बाय 2050 डी डॉलराइजेशन हो जाएगी। आपने टर्म यूज नहीं किया, लेकिन आपने कहा वर्चुअल करेंसीज का दौर आ जाएगा, डॉलर खत्म हो जाएगा एज ए स्टैंडर्ड एक्सचेंज। देखिए, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ये अनरियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट नहीं है? क्योंकि जो डॉलर की स्टेबिलिटी है उसके पीछे अमेरिका की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है। अमेरिका वर्ल्ड ऑर्डर में एक बड़ा की प्लेयर है। अभी आपने मुझे खुद क्यों दे दी, बड़ा सीखने को मिलता है आपसे। आपने चाइना की मिसाल दी, चाइनीज आर हेविली इन्वेस्टेड इन अमेरिका। तो ये अनरियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट नहीं है ये कहना कि बाय 2050 डी डॉलराइजेशन हो जाएगी। हमें तो ऐसा होता अपने लाइफ टाइम में नजर नहीं आ रहा। तो आप इस पर थोड़ी रोशनी डालिए कि आप कैसे कह रहे हैं, आप क्या आपके पास आप मतलब बेसिस है जो आप समझते हैं कि आप मुझे ये बताएं कि 2050 तक यस अमेरिका का ट्रेड बैलेंस दुनिया के साथ क्या होगा? वो डेफिसिट तो उनका भी है ना, चाइना के साथ भी। नहीं, डेफिसिट किस लेवल पर होगा? बढ़ेगा नहीं, सब बढ़ेगा नहीं, अनमैनेजेबल हो जाएगा, अनमैनेजेबल हो जाएगा, अनमैनेजेबल जिस तरह जा रहा है जी, जिस तरह जा रही है बात, ठीक है। और मैं ये समझता था पर्सनली कि ये अमेरिका की जो सुपरमेसी है ये तकरीबन 30 से 25-50 साल बाकी रहेगी। ये मेरा पर्सनल व्यू था। जब ये एआई वाली कंपनी आई ना चाइना की, नाम क्या नाम है इसका, डीप स्पार्क, क्या नाम है? चाइना की ये डीप सीक चाइना वाली जो हाँ, जो डीप सीक उनकी ओपन एआई है। जब उनकी वो कंपनी आई ना एआई वाली, तो उसने एक चीज बड़ी डिमॉन्स्ट्रेट की, आपको गौर करें। उसने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि चाइना की जो टेक्नोलॉजी है ये पायरेटेड नहीं है, ओरिजिनल है। देखिए, मैं ये समझता था
कि चाइना की आईटी टेक्नोलॉजी टेक्निकली अमेरिकन का कॉपी है या अमेरिकन का कोई ये रेप्लिका है या उसके प्रोटोटाइप को यूज करके ये कोई काम कर रहे हैं। मगर जब ये एआई के अंदर चाइना ने ये चीज डाली मार्केट में, तो उससे एक चीज साबित हुई कि चाइना की यूनिवर्सिटीज, चाइना की एजुकेशन, चाइना का मैन पावर, चाइना की जो चीज है वो दुनिया में, मतलब इसको और आसान कर दूं, दुनिया अमेरिका के बगैर जिंदा रह सकती है। उसने ये साबित कर दिया कि आने वाली दुनिया अमेरिका के बगैर जिंदा रह सकती है इस एआई वाली कंपनी ने। हम ये समझ रहे थे कि एआई जो आएगी वो आएगी ही अमेरिका से, ठीक है, मगर इस इवेंट ने पूरा माइंडसेट मेरा चेंज कर दिया, अमेरिकन का भी चेंज कर दिया कि यार ये जो हुआ है ना, और इसलिए अमेरिका की स्टॉक मार्केट उस दिन क्रैश कर गई, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें पता नजर आ गया कि ये जो हमने इतना बड़ा पूरा हौला खड़ा किया हुआ है ये चीज गिर जाएगी, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि 2050 तक या 2040 तक आपके ख्याल में जो डेफिसिट अमेरिका की ट्रेड में आएगा, अगर ये टेक्नोलॉजी इसी तरह डेवलप होती रही चाइना की, ठीक है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। मैं अभी SIUT से उठकर आ रहा हूं, मैं जो रोबोटिक की मशीन अमेरिका से लेता हूं $4 की, उसी क्वालिटी की मशीन मुझे $1 में चाइनीज देने को तैयार है। अच्छा, पहले मैं ये समझता था कि ये मशीन जाली है, चलेगी नहीं, चाइनीज है, तो मगर अब मुझे लोग ये बता रहे हैं कि वो इतनी जाली नहीं है जितना आप समझते हैं। अच्छा जी, नहीं मतलब व्हाट आई एम सेइंग कि नहीं। अब मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको मौका मिले तो एक किताब पढ़िएगा, डेंग ज़ियाओपिंग की बायोग्राफी, जिसने चाइना को चेंज किया है। हाँ, उसने कहा कि मैंने 40 यूनिवर्सिटियां बनाई हैं उस क्वालिटी की जो मुझे हार्वर्ड और येल के बराबर में बंदे क्रिएट करके देंगे, और मैं आज समझता हूं जो उस किताब में लिखा था ना, ये एआई में साबित हुआ, ठीक है। अब मैं जो कह रहा हूं आपको कि अमेरिकन्स जो हैं वो कंसीड नहीं करेंगे, और ये एक टग ऑफ वॉर होगी बिटवीन अमेरिका एंड चाइना कि हाउ टू, चाइनीज जो अमेरिकन करेंसी के साथ खेल रहे हैं ना, वो तो समझ लें। देखिए, जो आज फेडरल रिजर्व में पैसे पड़े हैं चाइनीज के, ये बुक एंट्री है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये किताबों की एंट्री है। एज लॉन्ग एज चाइनीज पीपल इज कंसर्न, ये बुक एंट्री है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। चाइनीज को जो डेवलपमेंट करनी थी उन्होंने कर ली, उन्हें वो डॉलर नहीं चाहिए, जो चाइना के अंदर डेवलपमेंट होनी थी वो हो गई। अब मैं इसको और आसान करता हूं आपको, आप मुझे बताएं कि पिछले 10 साल में कितने नए एयरपोर्ट्स अमेरिका में बने हैं और कितने चाइना में बने हैं, और किस क्वालिटी के बने हैं। पिछले 15 साल में अमेरिका में कोई ढंग का बड़ा एयरपोर्ट नहीं बना है। क्यों नहीं बना? तो हर चीज, वो जो चीज है उसको आहिस्ता 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 नीचे जाना है। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये जो आप नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, ये नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट पॉलिटिकली तो बाकी रह जाएगा, मेरे हिसाब से पॉलिटिकली जरूर रह जाएगा, मगर शायद ये फाइनेंस पे एवोपरेट हो जाए, मतलब फाइनेंस में इसकी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो जो चाइनीज है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उसकी बिडिंग डॉलर में आए। एक टाइम ऐसा आएगा, अभी तो उनको एक्सपोर्ट करना है ना। अभी तो ये टैरिफ क्यों लग रहा है आपके ख्याल में? ये टैरिफ क्यों लगा रहा है ट्रम्प? टैरिफ क्यों लगा रहा है? इसलिए कि उसको अमेरिकनों को रोजगार देना है। नहीं, उसको अमेरिका को, अमेरिकन की नौकरियां खत्म हो गई ना, तो अमेरिकन को रोजगार देना है। वो टैरिफ पे लगाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, टैरिफ लगाएगा तो चाइना क्या करेगा? चीजें तो बनती रहेंगी, तो कहां जाएंगी? तो वो हमारे जैसे मुल्कों को, गरीब मुल्कों को कंपैरेटिवली सस्ती मिल जाएंगी, ठीक है। तो दुनिया एक बिल्कुल डिफरेंट पैराडाइम में जा रही है। मैंने अपनी अभी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसमें एक जुमला लिखा है कि 2050 के बाद मेरे पोते, अगर मेरे बच्चे जाएंगे अमेरिका में, उतरेंगे
JF कैनेडी एयरपोर्ट पर और हम जाकर कहेंगे कि देयर यूज्ड टू बी सिविलाइजेशन हियर। हाँ जी, क्या जी? छप गई। हाँ छप गई। कॉम्प्लीमेंट्री कॉफी आपको सुबह पूछो आप चार लोग। अच्छा जी, वो नहीं छप गई है, मगर उसकी लॉन्चिंग 27 तारीख को है। हम सबको बुलाइए। आपका कार्ड आएगा। हाँ जी, इस वक्त जब हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो किसी न किसी चीज से तो पैक्ड है ना, क्या जी? मतलब बिटकॉइन की हम बात कर रहे हैं। पैक नहीं है किसी के साथ। नहीं, मतलब आप ये कहते हैं कि ये एक बिटकॉइन है तो ये $1 लाख का है, और अगर कोई चीज खरीदनी है तो उसकी वैल्यू कैसे सेट होगी? जो वर्चुअल करेंसी होगी, उसका स्टॉक एक्सचेंज है ना, उसका एक्सचेंज है ना। जैसे हम ये खरीदने जा रहे हैं पानी की बोतल, नहीं, उसका एक्सचेंज है ना। आज जिस तरह आपका स्टॉक एक्सचेंज का इसकी कोटेशन होती है ना, जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे एक्सचेंज की रेट आएगा, आप मल्टीप्लाई कर देगा। किस चीज से? क्या मतलब वो कौन सी चीज होगी जिससे हम? मेरे पास बिटकॉइन है ना, और है, और मुझे आपसे ये बाइक खरीदना है, हाँ, तो वो मैं रेट निकालूंगा, वो निकाल देगा कि ये बिटकॉइन की ये इसके 8 बिटकॉइन के बराबर है। बैक हो जाएगा। पैक किसके साथ हुआ? मतलब ये जैसे क्या? हाँ हाँ, कितना पे करना है? हाँ, कितना पे करना है, किस चीज पे करना है? हाँ, अगर चाइनीज खरीदेगा तो बता देगा मुझे इतने युआन चाहिए। हाँ, नहीं, वो ये बात कर रहा है कि नहीं, वो ये बात कर रहा है कि पेमेंट नहीं, ट्रांजैक्शन कैसे होगी, ये बात पूछ रहे हैं ना। वो भी और किसी चीज की वैल्यू कैसे सेट होगी? एक आइटम है, किसी चीज की वैल्यू तो है ना, वो बिटकॉइन तो पेमेंट मैकेनिज्म है ना। राइट, बिटकॉइन तो पेमेंट मैकेनिज्म है ना। हाँ, तो अब अगर ये बोतल आज 100 रुपए की है तो ये कैसे सेट होगा कि इसकी 5 बिटकॉइन है? ये कैसे सेट होगा? अभी तो है, अभी तो ये सेट है कि अच्छा एक बिटकॉइन जो है वो $100 का है, और $100 जो है वो 1000 रुपए के हैं, तो 1000 रुपए के हिसाब से इसकी 10 सेंट हो गई तो इतने बिटकॉइन हो गए। इस तरह से वो होता है ना। जब ये सारा आप कह रहे हैं, यस आई टोटली एग्री विथ यू दैट इन 25 years दिस विल ऑल बिकम अ वर्चुअल, बट हाउ विल दिस ट्रांजिशन टेक प्लेस? दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से। मैंने एक स्लाइड बनाई थी जो इसी सवाल को इस सवाल पे बनाई थी, बाद में डिलीट कर दी कि सवाल कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। उसपे मैंने कहा था कि दैट विल बी द री-इनकारनेशन ऑफ बार्टर। दैट विल बी द री-इनकारनेशन ऑफ बार्टर। वो बार्टर की री-इनकारनेशन है टेक्निकली स्पीकिंग, कि जो करेंसी पहले बार्टर था ना, करेंसी आई थी बार्टर को खत्म करने के लिए, तो आप बार्टर की री-इनकारनेशन करेंगे, उसकी शक्ल कैसे निकलेगी वो मैं अभी आंसर नहीं कर सकता। वो मैंने बनाया था मगर मैंने वो निकाल दिया कि यार ये इज गेटिंग टू कॉम्प्लिकेटेड। मैं उसी तरफ जा रहा था कि हाँ, फिर ये सारी चीजें जो है ना विल देन इवेंचुअली बिकम कि मेरे नजदीक इस पानी की वैल्यू जो है हाँ, ना, जी, जी, exactly। वो 2 बोरी आटे की है, तो हाँ, आप जी, ये जी, 2 बोरी exactly। आटे ले लें और मुझे ये बता। हाँ, बार्टर है एक्चुअली बार्टर है जी। अच्छा, ये फरमाइए आप अभी वो पूछना बार्टर चाह- नहीं है, आज बार्टर नहीं है जी। जी। मैं अल्टीमेट बार्टर की बात कर रहा हूँ जी। जी शाह साहब, सर, आप इतने टैक्सेशन के एक्सपर्ट हैं, ये आप अपने वेल्थ स्टेटमेंट में क्या शो करेंगे क्रिप्टो करेंसी को? हाँ एग्जैक्टली, अच्छा बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया। अच्छा, मैंने आपको बताया है ना कि इंडिया ने वर्चुअल करेंसी को एक्सेप्ट ही नहीं किया, मगर इंडिया ने अपने इनकम टैक्स लॉ में डेफिनेशन डाली है वर्चुअल एसेट। उनकी इनकम टैक्स लॉ में डाला है उन्होंने, 2 साल पहले डाला है, हम भी डालेंगे इंशाल्लाह। नहीं, तो उन्होंने कहा है कि अगर मेरे पास बिटकॉइन है और मैंने पे किया उसके लिए तो मेरा एसेट है वो। मैं लिखूंगा उसके अंदर आई हैव बॉट अ बिटकॉइन वर्थ $2 लाख। आज वो हो सकता है $3 लाख का हो उसकी वैल्यू। मतलब मैंने जो लॉ में, इंडियन लॉ में बिटकॉइन या जो वॉट एवर टोकन इज अ एसेट विच इज वर्चुअल एसेट इज एन एसेट। इंडियन लॉ में आज उन्होंने स्पेशली डाला है इसको, और राइटली डाला है, सही डाला है बिल्कुल जी। अच्छा देखिए, आई एम गोइंग टू वाइंड अप दिस सेशन, बट somebody over there, this will please be the last question. And please be sure, ask a question, don't make a speech.
सर आपने स्लाइड्स में मेंशन किया कि करेंसीज आर बैक्ड बाय नेशन स्टेट, जैसे पाकिस्तान की आपने एग्जांपल दी और उसके अलावा अमेरिका की एग्जांपल दी और इंडिया की एग्जांपल दी। तो जो क्रिप्टो करेंसी है वो अभी तक किसी भी बैक्ड बाय नेशन स्टेट नहीं है, ठीक है। और आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी अमेरिका, आपने बताया अमेरिका ने जीनियस एक्ट बनाया है ना, वो करने जा रहे हैं ना। जी जी जी। तो आपने काफ़ी बार हाईलाइट किया कि जो डॉलर है वो 2050 तक जो है वो डाउन हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता सर इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिका अपना आप को मजबूत करने के लिए सारी जीनियस एक्ट बनाया और उसके बाद जितनी भी कार्रवाई कर रहा है अमेरिका, ये सारी अपना आप को मजबूत करने के लिए कर रहा है। और सर बहुत कंसाइज सा क्वेश्चन है कि सर पाकिस्तान में जो अभी डिजिटल एसेट ऑर्डिनेंस आपने स्लाइड्स में मेंशन किया, सवाल क्या है आपका? सवाल भी आ रहा हूँ सर। तो जब भी लॉ बनाया जाता है तो उसकी वायलेशन के लिए एक प्रोसिक्यूशन भी बनाई जाती है सर। तो पाकिस्तान में तो कोई ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो है ही नहीं, जैसे कि GDPR हम सुनते हैं, जनरल डेटा प्रोटेक्शन बिल। तो पाकिस्तान में रेगुलेटरी अथॉरिटी है ही नहीं जो इस तरह की प्राइवेसी ब्रीचेस को एंटरटेन करे। नहीं देखिए, मैंने कहा ना कि जब हम वर्चुअल एसेट एक्ट 2025 लेकर आए तो उसके एक्ट के अंदर लिखा है कि हम वर्चुअल एसेट अथॉरिटी बनाएंगे, जो बन गई है मेरे ख्याल में। और वो वर्चुअल एसेट अथॉरिटी इशू करेगी वो वर्चुअल एसेट जो पाकिस्तानी ऑफिशियली बाय कर सकता है। वो डॉलर में इनकैशेबल हैं, मगर वो होंगे जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के रेगुलेटेड सिस्टम से इशू होंगे, ठीक है। उसके अलावा जो होंगे वो टेक्निकली इलीगल है, उस पर आप डील नहीं कर सकते। क्या जी? सर प्रोसिक्यूशन क्या है फिर इसका? प्रोसिक्यूशन कौन करेगा? नहीं सॉरी, मेरी आपकी बात चेक की बात नहीं है। आज पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक वर्चुअल एसेट इशू कर दिया, ठीक है। तो वो जो एक अथॉरिटी ने वर्चुअल एसेट इशू किया जो मैंने खरीद लिया, तो वो एसेट से मैं बाहर की चीजें पेमेंट कर सकता हूँ, उससे मैं एनकैश कर सकता हूँ और उसकी फिक्स वैल्यू नहीं है। ये गवर्नमेंट का रेगुलेटेड वर्चुअल एसेट है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं ऑलरेडी है वो, तो उसको तो पाकिस्तान रिकॉग्नाइज ही नहीं करता ना। वो तो ऑलरेडी आपने काम किया है, वो जो पाकिस्तान में अलाउड ही नहीं था पहले कभी। आप चाहें तो उसको डिस्क्लोज कर दें। आप आज आपके पास आज है, जब आप डिस्क्लोज करेंगे, आप ये आज मुझे कहेंगे कि मेरे पास $4 बिलियन के बिटकॉइंस है, सपोज करें आप कहते हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा ये पैसे कहां से आए थे? हाँ, तो इसलिए आप नहीं करेंगे। सिंपल बात है ना कि आप मुझे कहेंगे मेरे पास $4 बिलियन के बिटकॉइंस हैं, मैं बोलूंगा भाई ये ठीक है आपके पास हैं, तो आपके पास ये पैसे $4 बिलियन कहाँ से आए थे? तो इसलिए आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे। मगर अगर आपके पास वो वर्चुअल एसेट होंगे जो पाकिस्तान की वर्चुअल एसेट में अथॉरिटी ने इशू किए होंगे, तो आप दिखाएंगे, मुझे कोई परेशानी नहीं है। एक मिनट गजाली साहब, आप सवाल पूछना चाह रहे हैं? ओके। लॉयर हूँ और मेरा नाम इशरत गजाली है। मेरे पास आजकल बच्चे आ रहे हैं कि सर हमने बिटकॉइन में वॉलेट खोला IT के ज़रिए, पूरा इंटरनेशनल एक पूरा सिस्टम है, तो अब वो हैकर हमारे ले गए सारे बिटकॉइन, 2 करोड़ का नुकसान हो गया, 4 करोड़ का, तो हम कहाँ जाएं? तो मैंने कहा भाई कोई यहाँ तो अभी तो ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं है, उसका एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो इस पर कुछ आप देखिए, रोशनी डालें। मैंने आपको कहा ना, यही तो सारा इशू है। क्योंकि उस जो बिटकॉइन का जो या हैकर, वो हैकर नहीं है, वो गलत है, हैकर नहीं है वो जो पार्टी जिसने जिस बिटकॉइन तो खैर एक प्रोडक्ट है, वो जहां का उसने लिया होगा ना, वो गायब हो गया। तो अब उसे, दैट इज द होल पॉइंट। अब मैं उसे कहां पकड़ने जाऊंगा? क्या जी? किसके खिलाफ करनी है? तो यार आप दोनों वकील है ना, ठीक है। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब नहीं देना, सिर्फ सवाल सुन लो, बात जवाब नहीं देना। सिर्फ ये बता दो कि आगा सुपर मार्केट क्यों बंद हो गई? आगा सुपर मार्केट सोच लेना कभी। नहीं, बिटकॉइन नहीं, हवाला। अच्छा देखिए, आई वांट टू नाउ वाइंड अप दिस सेशन. It has been so fascinating. It is, for me at least, it was just a new world that has been opened. I am at a complete loss how to thank Shahbaz Zaidi for this absolutely marvelous session.
And I am very grateful to him that he has recognized the initiative which we have taken as an institution in this field, and very grateful that he has taken the time to speak to us. I had a lot of questions in my mind, and I'll just, maybe they are very silly questions, because a lot of what he said went over my head. You said that our national identity card was, that scheme was started by somebody saying, who said it? Who told us to start it? Bhutto Sahab. It was not Bhutto Sahab you were referring to. Sorry. नहीं हाँ किसी के कहने पे नहीं, देखे ना, किसी के कहने पे आपने कहा ना, तो मैं ये सोच रही हूँ कि जिसने भी कहा, सही कहा नहीं सही कहा गलत कहा, उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं आईडी कार्ड के, लेकिन ये है कि जिसने भी कहा तो वो दूसरे मुल्कों से भी कहता है वो, नहीं वो उनकी बात जरूरी मानते नहीं है ना, और हम मान जाते हैं। हमारे पास चॉइस नहीं। मतलब जो हमसे कह सकता है वो दूसरे मुल्कों से भी तो कह सकता है नहीं, ना? मेरा मकसद है हम तो 23 प्रोग्राम IMF के कर चुके हैं ना मैडम, हम 23 प्रोग्राम IMF के कर चुके हैं ना, तो हम जो वो कहता है हमें मानना पड़ता है। ठीक है, आई हमारे पास अंडरस्टैंड। चॉइस नहीं है ना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बिटकॉइन के अलावा भी तो कुछ कॉइन्स है ना, लाइट कॉइन और ये और वो। नहीं वो बिटकॉइन तो एक वन ऑफ द ब्रांड है। अच्छा, एक क्रिप्टो करेंसी का ब्रांड है एक, अच्छा। और उसके मुख्तलिफ हजारों नाम है, हजारों चीज नाम से, बिटकॉइन इज वन ऑफ द ब्रांड। जी हाँ, क्रिप्टो जेनरिक है, यस। अच्छा, ये जो आपने हमें सिलसिला समझाया है, उसमें फ्रॉड्स भी होते हैं बहुत? फ्रॉड ही होते हैं मेरे, बेसिकली देखे ना, तो सारा है ही फ्रॉड, मतलब ये ना कि वो सारा सिलसिला ही फ्रॉड है। मींस अब देखिए ना, आज तो बिटकॉइन चल रहा है, ठीक है, अब अगर खुदा ना खास्ता कल से वो गायब हो जाता है, सपोज करें वो गायब होता है, तो मैं किसको प्रोसिक्यूट करूंगा? वो जो ठीक है, अच्छा समझ गई मैं किसके खिलाफ? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये मेरा जहन इस तरफ जा रहा है, उसमें मोनोपोलीज भी बन सकती हैं? यस, नहीं मोनोपोलीज नहीं बन सकती ना, क्योंकि मुझे पास तो कंप्यूटर में मैं चाहूँ तो ये ले लूँ, चाहूँ तो नहीं लूँ। जिसका ट्रस्ट ज्यादा होगा वो चलेगा, जिसके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा होगा वो, मैंने कहा ना, जिसके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा होगा वो चलेगा। आप ये फील करते हैं कि अमेरिका से एक बंदे ने बिटकॉइन इशू किया हुआ है, वो शायद चल जाए, चाइनीज नहीं चले, तो हमें तो नहीं पता ना। अभी इट इज ऑल डिपेंड ऑन द ट्रस्ट, क्योंकि उसके पीछे कोई फिजिकल, कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है आज। अब सेंट्रल बैंक बना रहे हैं, हमें उसने बनाया है, अमेरिका ने, अभी पाकिस्तान ने बनाया है, बट वो जो रेगुलेटेड बिटकॉइंस आएंगे वो चलेंगे नहीं, इसलिए कि लोगों ने इस पे काम करना होता है 2 नंबरी वाला। तो जब इस वाले में जो डील करेगा तो उसको रिकॉर्ड में आ जाएगा उसके, इन दैट सेंस तो चलेगा वही जो वो वाला है। So it was very fascinating, Shabaz Zaidi. You put, as I said, you opened a whole new world. It has been a very fascinating session, and I want to thank you on behalf of all our members and our guests who are here present. Thank you very much, and you have always been welcome here. This is the second time or third time that you've spoken, and whenever you feel that you have something more to say, you are most welcome to speak from our platform. Thank you very much.